Hello friends, good morning and welcome to my Commerce and Management Guru channel. I am Ashok Kumar Sahu. Here I am presenting you with another video on Financial Market Institutions and Service, that is FMIS, and the topic for discussion is Scheduled and Non-Scheduled Banks, which is part 3, and this video is specifically designed for BCom students who are in 5th semester in Gangadhar University, and also this video is meant for competitive student like banking student or UGC NET, JRF student, or those who are preparing for PGT exam in KVS and NVS exam, then this video is meant for them. Let's start. If we talk about banks, then generally banks are divided into two types. One is scheduled banks and another is non-scheduled banks. So if we talk about scheduled bank, then generally these banks coming under RBI Act 1934 list 2, and generally these scheduled banks registered under the RBI Act 1934, whose paid up capital minimum 5 lakh and even more, and this bank have safe deposits, and the deposits are generally maintained in the form of money. The deposits are also secure, and if you are a customer and if you are deposit in scheduled banks, then your money is safe because it is registered through RBI Act. So if we talk about non-scheduled banks, then generally local area banks are coming under non-scheduled banks. So now presently there are 3 kinds of local area bank. In later slide we will discuss. Generally non-scheduled banks coming under Banking Regulation Act 1949. It follows the rules of Banking and Regulation Act, and these banks register under the Companies Act 2013 और बिफोर. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे कि शेड्यूल बैंक का डिटेल्स क्या है और नॉन शेड्यूल बैंक्स का डिटेल्स क्या है. सो चलो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट. So if we talk about scheduled banks, then here those banks are listed under Schedule 2 of the Reserve Bank of India Act 1934, and the bank's paid up capital and raise fund must be at least 5 lakh to qualify as a scheduled bank. मतलब जो बैंक का मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होगा तो वो लोग ही एलिजिबल हो गए शेड्यूल बैंक होने के लिए. और शेड्यूल बैंक होता क्या है, और आरबीआई में अगर वो लिस्ट 2 में अगर वो ऐड हो जाता है तो बेनिफिट क्या होता है. एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरली शेड्यूल बैंक को डिस्काउंट रेट में लोन देता है और बहुत एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है जो कि नॉन शेड्यूल बैंक को नहीं मिलता है. यहाँ पे लिखा है दीज बैंक्स आर लायबल फॉर लो इंटरेस्ट लोन्स फ्रॉम आरबीआई. शेड्यूल बैंक को जितने कम इंटरेस्ट रेट में, डिस्काउंट रेट में जितना लोन अवेलेबल मिल जाता है, नॉन शेड्यूल बैंक्स को नहीं मिलता है. अगर हम बात करेंगे presently there are 12 public sector banks that are coming under scheduled banks, 22 private sector banks, and 44 foreign banks. Total 68 banks are coming under this category, and these reports generally derived from RBI bulletin report on dated 30th April 2020. Now we will move to the next slide, which will describe non-scheduled bank. So here those banks which are not included in the list of the scheduled banks are called non-scheduled bank. Simple. And at present there are only 3 such banks in the country. इंडिया में 3 तो ही है जो कि नॉन शेड्यूल बैंक्स है. फर्स्ट वन इज कैपिटल लोकल एरिया बैंक जो कि आपके पंजाब में है. सेकंड वन इज कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है. एंड द थर्ड वन इज सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में है. सो मैं आपको बोला था दोस्तों कि आरबीआई जो होता है वो डिस्काउंट रेट में, लो इंटरेस्ट रेट में शेड्यूल बैंक को देता है. बट ऐसा नहीं है कि वो नॉन शेड्यूल बैंक को इग्नोर करता है, ऐसा नहीं है. वो नॉन शेड्यूल बैंक को भी देता है, लेकिन कौन सी सिचुएशन में? इमरजेंसी में. लिखा है एक्सपेक्ट इन इमरजेंसी नॉन शेड्यूल बैंक्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्व बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस. अगर इमरजेंसी ना हो तो आरबीआई से लोन नहीं मिलता है, लेकिन इमरजेंसी होगा तो आरबीआई भी शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक को
फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन थोड़ा हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है एज कम्पेयर टू शेड्यूल बैंक्स। एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स आर ऑफन डिनाइड द बेनिफिट्स एंजॉयड बाय शेड्यूल बैंक्स, क्योंकि शेड्यूल बैंक के लिए जो फैसिलिटी अवेलेबल होता है वो आपके नॉन शेड्यूल बैंक्स में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। सो दोस्तों ये है आपका शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स का डिटेल्स। चलो अभी हम डिस्कशन करते हैं एमसीक्यू पार्ट। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हियर शेड्यूल बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर ऑप्शन ए कंपनीज एक्ट 2013, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, बोथ बी एंड सी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके शेड्यूल बैंक्स जो है वो आपके ऑप्शन सी दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पे ही रजिस्टर्ड हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम प्रीवियस फर्स्ट स्लाइड में हम डिस्कशन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन शेड्यूल बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर व्हाट? कंपनीज एक्ट 2013, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, बोथ बी एंड सी। याद रखिएगा दोस्तों, नॉन शेड्यूल बैंक्स जो है वो आपके ऑप्शन बी में होगा, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सॉरी आपके कंपनीज एक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके जो नॉन शेड्यूल बैंक्स जो होता है वो आपके रजिस्टर्ड होगा कंपनीज एक्ट से। ठीक है, और जो रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो अप होगा वो आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा आपके राइट आंसर होगा। ओके, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कमिंग अंडर शेड्यूल बैंक्स? आपके ऑप्शंस है एसबीआई, एक्सिस बैंक, ओनली ए एंड बी, लोकल एरिया बैंक्स। तो हियर द राइट आंसर विल बी ओनली ए एंड बी, क्योंकि लोकल एरिया बैंक हम अभी डिस्कशन किए थे जो कि आपके नॉन शेड्यूल बैंक्स में आता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कमिंग अंडर नॉन शेड्यूल बैंक्स? कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कृष्णा बीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, all of these. So here the answer will be option D, that is all of these. Now we will move to the question number 5. Who generally sign 10 रुपी इंडियन करेंसी नोट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इजी भी है। आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंशियल मैनेजर। सो हियर द आंसर विल बी आरबीआई गवर्नर। अगर क्वेश्चन पूछा होता हु जनरली साइन 1 रुपी इंडियन करेंसी नोट, देन योर आंसर विल बी व्हाट? फाइनेंस सेक्रेटरी। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नॉन शेड्यूल बैंक्स follows the rules and regulation mentioned in what? RBI Act 1934, Banking Regulation Act 1949, Companies Act 1956, Companies Act 2013. So here the question asking about non-scheduled banks follows the rules and regulation. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो रजिस्टर्ड होता है कंपनीज एक्ट में, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो होता है वो आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। ओके, नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस डैश बैंक्स पेड अप कैपिटल मस्ट हैव एटलीस्ट 5 लाख? शेड्यूल बैंक्स, नॉन शेड्यूल बैंक्स, आईएफसीआई, सेबी। सो हियर द आंसर विल बी शेड्यूल बैंक्स, ऑप्शन ए। Question number 8. Dash banks are not bound to maintain CRR. CRR means cash reserve ratio. Here the options are scheduled banks, non-scheduled banks, IFCI, SEBI. So here the answer will be non-scheduled banks. So that banks are not bound to maintain CRR. But in case of scheduled banks, they are compulsory to maintain CRR. Now question number 9. Scheduled bank in India means a bank. Here the options are incorporated under the CA Act 1956, incorporated under the CA Act 2013, included in the Schedule 2 of the RBI Act 1934, included in the Schedule 1 of the RBI Act 1934. So here the answer will be option C. Next question number 10. Dash is the largest commercial bank in India. So here the options are State Bank of India, Axis Bank, Bank of India, NABARD. So here the answer will be State Bank of India, option A.
याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम पब्लिक सेक्टर के बारे में बोलेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में बोलेंगे तो आपके ICICI बैंक जो है आपके लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please give a thumbs up, like, share and subscribe. Thank you.